नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, जहां इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल, क्योंकि सत्य और तथ्य के साथ हम पेश करते हैं खबरों को आपके समक्ष। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ऑस्ट्रेलिया के बाद पेरू का, तो पेरू में 2017 की अगर बात की जाए तो दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर हम एफटीए की बात करें तो पेरू में 2017 से बातचीत जारी है। और अब तक इस पूरी वार्ता यानी कि टॉक्स के जो 9 सेशंस हैं, 9 दौर पूरे हो चुके हैं। 3 से 5 नवंबर तक 2025 में ये वार्ता जो थी उसका आखिरी दौर था। इसके बाद आइए रुक करते हैं अब भारत और चिली की, कि कैसे इसमें एफटी की जो गाड़ी है वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो 1 अप्रैल 2025 को ये वार्ता शुरू हुई थी और कोशिश है तमाम देशों में कैसे अपने बाजार की पहुंच की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। अब तक 4 दौर की जो चर्चाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। वही पिछले साल अगर 1 से 5 दिसंबर की बातचीत की अगर बात करें तो 2025 में ये आखिरी बार वार्ता हुई थी। वहीं यूरेशियन आर्थिक संघ यूरोप में किस तरह से भारत को आगे लेकर जाएगा, तो 26 से 28 नवंबर 2025 तक ये वार्ता का पहला दौर चला है। अब बात करते हैं इजराइल की, तो 2026 में जो वार्ता है उसका पहला दौर संपन्न हुआ। लब्बो-लुबाब ये कि जिस तरह से भारत एफटीए को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है, उसमें कोशिश ये है कि इन देशों के साथ व्यापारिक तौर पर एक विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है इन तमाम देशों के साथ भारत का।
बात कर लेते हैं इसके बाद भारत यूरेशिया आर्थिक संघ के बाद अब श्रीलंका की अब तक 14 दौर की बातचीत जो है वो पूरी हो चुकी है। 2015 से एफटीए को लेकर लगातार बातचीत जारी थी और 24 से 26 जुलाई 2024 तक ये वार्ता का जो आखिरी दौर है वो चला है। चलिए, ये तो अब इन 6 देशों का हमने जिक्र किया, लेकिन किन किन देशों के साथ भारत एफटीए कर चुका है वो आपको समझाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम की, जहां 24 जुलाई 2025 की बात की जाए एफटीए। वहीं मॉरिशस, जहां जब हम बात करते हैं कि कैसे एफडीए में बढ़ोतरी हुई, तो मॉरिशस में एक बहुत बड़ा देश भागीदार है, 22 फरवरी 2021। वहीं ऑस्ट्रेलिया 2 अप्रैल 2022 से पूरी टाइमलाइन टेक्नोलॉजी जो हम आपको समझा रहे हैं। ओमान की अगर बात की जाए तो 18 दिसंबर 2025 में एफटीए पर बात हुई, मतलब एफटीए हो चुका है। यूएई की अगर बात की जाए तो 18 फरवरी 2022 और ईएफटीए 10 मार्च 2024। वहीं न्यूजीलैंड का अगर जिक्र किया जाए, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ इनोवेशन के लिए जाना जाता है, वहां 22 दिसंबर 2025 में बातचीत संपन्न हुई। और यूरोपियन संघ की अगर बात की तो ये तो ऐतिहासिक मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा गया, 27 जनवरी 2026। लेकिन हम लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और इसकी प्रमुख विशेषताएं आखिर हैं क्या, आपको बता दें। कम टैरिफ, कम यानी कि उस पर आपका टैक्स लगेगा और घरेलू उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना आसान हो जाता है कि अगर उस पर टैरिफ कम है। इससे व्यापारिक बाधाएं कम होती हैं, लाइसेंसिंग के जो नियम हैं वो सरल हो जाते हैं और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने से आपकी जीडीपी में डबल डिजिट होना सीधी तौर पे तय है। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक सहयोग की, तो जो सदस्य देश हैं उनके साथ निवेश में बढ़ोतरी आती है और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। और बहुत आखिर में कंज्यूमर इज द किंग, क्योंकि ग्राहकों के लिए अब अलग अलग विकल्प मौजूद हैं, उनके लिए सामान सस्ते होते हैं और कंपनियों को नए बाजार उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा से न्यूज रूम से। मुकुल, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं आर्थिक सशक्तिकरण के लिहाज से एफटीएस को, और अब तो 6 देश और जुड़ गए हैं भारत के साथ? बिल्कुल आंचल, देखिए जब हम बात करते हैं किस तरीके से भारत जो है एक महत्वपूर्ण ग्लोबल पार्टनर के रूप में उभरता हुआ नज़र आता है, और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है जिस गति के साथ आगे बढ़ रही है, जो मजबूती यहाँ नज़र आती है, उस वजह से कई ऐसे देश हैं जो कि जिनके साथ हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो व्यापार को लेकर वार्ताएँ हैं वो लगातार चल रही हैं। और ख़ासतौर से पेरू चिली की हम बात करें, श्रीलंका की बात की जाए, तो लगातार वो जो दौर है बातचीत का चल रहा है, जिसकी जानकारी आपने दी कि किस तरीके से हर एक जो वार्ता है उसमें खासतौर से जो चर्चा होती है वो यही कि कैसे जब दोनों देशों के बीच जो व्यापार वार्ताएं हैं जब वो और बेहतर होती नज़र आती हैं, तो कैसे दोनों देशों के लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। जब हम बात करते हैं कि कहीं भी जो टैरिफ है, जो जब शुल्क देना पड़ता है, अगर वो कम रहेगा उसका लाभ जाहिर तौर पर मिलता है। लेकिन हमें ये एक दूसरे लिहाज से भी ये देखना होगा कि भारत कैसे अब अपनी भूमिका में बड़ा बदलाव ला रहा है, क्योंकि पहले हम अक्सर देखते थे किस तरीके से जो आयात है हमें उस पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज के समय में जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत का विज़न जब हम लेके चल रहे हैं, तो भारत की यहाँ भूमिका निर्यातक के रूप में नज़र आने लगती है। जब हम चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं, यानी हमारे देश में ही उनका उत्पादन जो है वो ज़्यादा होगा, और उसी वजह से हम देखेंगे कि जो भारत है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पहले अपने आप को स्थापित करेगा। फिर ना सिर्फ ये 5-6 देश बल्कि और भी कई ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के जो संबंध है और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे, और वहाँ भी हम देख पाएंगे कि उनके साथ किस तरीके से जो समझौते हैं वो किए जाते हैं। और खासतौर से भारत की अगर बात की जाए, ना सिर्फ वो तमाम एफटीए जो अभी तक हमने वर्ष 2025 की अगर बात की जाए काफ़ी अहम रहा था, अहम समझौते जो हैं अलग अलग देशों के साथ हुए थे, लेकिन 26 की शुरुआत में ही इंडिया EU FTA की भी हमने देखा जो शुरुआत हुई है। तो ये कहा जा सकता है आंचल, जब शुरुआत इतनी बेहतर रही है तो जाहिर तौर पर इस साल हम कई और FTA जो हैं वो भी होते हुए देखेंगे भारत के। वही लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की अगर बात की जाए, जिसमें हमने ज्वेलरी क्षेत्र की बात की, हमने फूड प्रोसेसिंग का जिक्र किया, उस लिहाज से एफटीए कैसे बूस्टर डोज देते हुए नजर आएंगे इन तमाम सेक्टर्स को, जब भारत लगातार वैश्विक स्तर पर अपने आप को परिकल्पित कर रहा है? बिल्कुल आंचल, देखिए जब खासतौर से फूड प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका निर्यात लगातार भारत करता है बड़े पैमाने पर। सी फूड की बात की जाए, तमाम जो दूसरे फूड हैं, या इसके साथ साथ जैसे ज्वेलरी का आपने जिक्र किया, ज्वेलरी सेक्टर में से लगातार ना जाने और भी ऐसे देश जिनके साथ अब भारत जो है जुड़ता नज़र आता है। जो कारीगरी है, या जब हम देखते हैं किस तरीके से भारत में जो छोटे उद्यम हैं उनको लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है, और उनके लिए एक बड़ा बाज़ार देना, उनको जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं जो बड़ा बाज़ार है वो मिलता हुआ यहाँ नज़र आता है, जिसके ज़रिए
हर एक क्षेत्र को फ़ायदा मिलता है और उसी वजह से हम ये देख भी पाते हैं कि कैसे लगातार इस बाज़ार की वजह से जो लोगों की आमदनी है उसमें इजाफा होता है, अर्थव्यवस्था जो है उसको लाभ मिलता है। हर तरीके से अगर देखा जाए तो एक विन विन कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है वो यहाँ नज़र आती है हमें। भाई मुकुल, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि कैसे प्रतिस्पर्धी मॉडल के जरिए बाजार में एक कंपटीशन की भावना क्रिएट करने की भी कोशिश एफटीएस के जरिए होती है। ये स्टेप कितना कारगर साबित होता है एक ऐसी भावना को क्रिएट करने में, जब हम बात करते हैं वैश्विक पटल पर भारत को अलग अलग बाजारों में अग्रणी रूप में खड़ा होते हुए देखते हैं। बिल्कुल आंचल, देखिए प्रतिस्पर्धा कहीं भी हो वो आप में जो बेहतर हो सकता है उसको निखारने का काम करती है। और भारत में जब हम बात करते हैं, क्योंकि सरकार के जो प्रयास रहे हैं वो किस तरीके से कौशल के विकास पर हम ध्यान देते हैं, कैसे लोगों का जो कौशल है उसका विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, और यही हम अलग अलग एमएसएमईज़ में भी देखते हैं। और उसी वजह से, क्योंकि आज के समय में भारत जिस तरीके से अलग अलग मॉडल पूरे विश्व के सामने रख रहा है, ये भी उनमें से एक है। और इस तरह का मॉडल देना, क्योंकि इसके ज़रिए देखिए ना सिर्फ जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हैं वो हमें अपने देश में मिलेंगे, और पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री की मोदी की पहल पर किस तरीके से जब हम बात करते थे, कैसे जब हम लोकल की हम बात करते हैं कि अब जब हम ग्लोबल पर जा रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर वो गुणवत्ता जो है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुणवत्ता जो है इसके ज़रिए वो सुधरती हुई नजर आएगी, और जैसे जैसे बेहतर गुणवत्ता मिलेगी उसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो भी हम देखेंगे कैसे हम भारत जो उसको बढ़ाता नजर आएगा। तमाम जो निर्यातक हैं वो उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सरकार का कहना यही है कि जो भी उत्पाद किसी दूसरे देश में जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर हमें ध्यान देना होगा। इस तरह के जो मानक हैं वो सरकार अलग अलग उत्पादों के तय कर रही है कि किन उत्पादों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ संभावनाएं हैं, कहाँ अवसर हैं। ज्वेलरी सेक्टर इनमें से एक है, या फूड प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत के जो निर्यातक हैं उनके लिए बड़ा बाजार है, और एक बड़ा मौका रहेगा, अच्छा मंच मिल सके उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। बिल्कुल बड़ा मौका रहेगा जिसमें हम लेदर इंडस्ट्री के साथ साथ फुटवेयर को भी अगर जोड़ लें। और अंत में बात यही कि किस तरह से कंज्यूमर सेंटिमेंट को बढ़ावा देना, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वहीं आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो सुप्रीम कोर्ट की पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगी। अब सवाल उठता है आखिर क्यों? तो वो ये कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई में मुख्यमंत्री साहिबा ममता बनर्जी के हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। आईपैक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात से निपटने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की जरूरत है, और इसीलिए जिस तरह से मुख्यमंत्री दखल दे रही हैं कार्रवाई में ये ठीक नहीं है, और इसीलिए ईडी के एफआईआर दर्ज करने की मांग इस पर की गई। तो आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्यों ममता को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी है डांट और फटकार, आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आईपैक रेड का ये मामला था जहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसे, और ये सवाल उठाया कि आखिरकार मुख्यमंत्री जैसे एक गरिमापूर्ण और संवैधानिक पद पर रहते हुए हस्तक्षेप क्यों किया गया कार्रवाई में। और रेड के दौरान सीएम का दखल ठीक नहीं है, कोर्ट की सख्त टिप्पणी रही। केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल देना सही नहीं है, ये कहा कोर्ट ने। और ये सवाल भी पूछा कि अगर कोई और सीएम ऐसा करता तो, और भविष्य में इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक स्पष्टीकरण होना जरूरी है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जरूरी है। और आखिरकार अब ईडी की एफआईआर की मांग क्यों उठ रही है वो भी आपको बताते हैं। तो ये आईपैक रेड के दौरान कार्रवाई से जुड़ा हुआ मामला है, जहां ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता पर दखल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाई हम जो कार्रवाई करने गए थे जो कि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप थी, उस कार्रवाई में दखल दिया गया। याचिका में चीफ मिनिस्टर, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं, और ईडी ने इन तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, क्योंकि जो वो काम करने गए थे जो कि लीगल था, अपने संवैधानिक दायरे में आता है, उस काम को करने नहीं दिया गया। तो एक बार आपको टाइमलाइन के जरिए थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। तो 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में छापा मारा। आईपैक डायरेक्टर जो प्रतीक जैन है, उनके ठिकानों पर रेड की गई। प्रतीक जैन ममता के राजनीतिक रणनीतिकार भी माने जाते हैं। अब ऐसे में सीएम ममता बनर्जी अचानक खुद मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला, और ममता ने ईडी की कार्रवाई में दखल दिया। रेड के दौरान वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी जब वो फाइलें लेकर वहां से चलती बनी, और पुलिस ने ईडी अधिकारियों के ही खिलाफ दर्ज कर ली थी एफआईआर। तो कितना उल्टा, वो कहते हैं सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। और ऐसे में अब आईपैक पर
जो तमाम आरोप है, क्योंकि अगर ईडी ने कार्रवाई की है तो कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स तो होंगे। तो आईपैक पर कई गंभीर और ज़हीन आरोप हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है। अब इसमें 2,742 करोड़ का जो कोयला घोटाले से जुड़ा मामला है वो शामिल है। 20 करोड़ का हवाला जो था, यानी कि हवाला के जरिए आईपैक तक ये पैसा पहुंचा। सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को इस बाबत एफआईआर भी दर्ज की थी। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इस पूरे मामले की जांच शुरू की, यानी कि ये मामला काफी पहले का है। 8 जनवरी को कोलकाता में ईडी की छापेमारी जब हुई, वो हुई थी डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ईडी की रेड हुई। तो मामला लबो-लबाब यही रहा, लेकिन ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं कुछ ठसका हुआ और वो सीधे प्रतीक जैन के दफ्तर पहुंचे, वहां से फाइलें उठाकर चलती बनी। इसी पर बात करने के लिए सौरभ दत्ता इस पर जुड़ गए हैं हमारे साथ कोलकाता से। सौरभ, आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक कि भाई कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, जिस तरह सीएम के पद पर वो हैं, इस तरह कार्रवाई में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। आंचल, देखिए, कल जब सवाल जवाब चल रहा था तब सैम दीवान जो राज्य के तरफ से वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका यही सवाल था कि एक केंद्रीय जांच संस्था ईडी एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा याचिका दायर नहीं कर सकती है। यही उनका सवाल का मूल मुद्दा था। लेकिन वहां पे जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दिया अपने ऑब्जर्वेशन में कि एक एग्जाम्पल जो सेट किया गया है, ये एग्जाम्पल सही नहीं है। कौन ये निश्चित करेगा कि आगे जाके और कोई सीएम ऐसे जांच जो चल रही है, जैसे जो रेड चल रही है, वहां पे जाके इस तरह से जाकर फाइल छीन के लाना और इस तरह से रेड की जो प्लेस है वहां पे पहुंच जाना, ये आगे जाके कोई सीएम नहीं करेगा। इसकी निश्चित ये कौन करेगा, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात उठाया। और यही मुद्दा है कि एक जब रेड चल रहा है तो क्योंकि जो याचिका दायर किया गया है ईडी की तरफ से, वहां पे बार बार ये मेंशन किया गया कि ये एक बार नहीं हुआ है बंगाल में, कि ये आईपैक के जो ऑफिस में रेड हुआ और उसके चलते सीएम पहुंच गई वहां पे, और उस रेड की जो प्रोसेस है वो कहीं हद तक वो हैम्पर हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले शारदा घोटाला में जब तब सीपी थे, अब राज्यसभा के टीएमसी के सांसद है राजीव कुमार, उनके घर के बाहर भी धरने पे बैठ गई थी ममता बनर्जी। और फिर आगे चल के निजाम पैलेस में जो और भी यहाँ पे घोटाले के मामले हैं, तब भी एक बड़ी तायनात में टीएमसी के जो वर्कर्स है वो यहाँ के जो सीबीआई के जो हेडक्वार्टर्स है निजाम पैलेस, वहाँ उसके बाहर जमा हुआ और उसमें भी काफी तोहफा हुआ। ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ के जो आधिकारिक है उनके ऊपर दबाव साफ तरीके से दिख रहा था कि एक दबाव डालने की कोशिश है। तो ये जो ट्रेंड सेट किया है टीएमसी ने बंगाल में, इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं जाके एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए। इसी को चलते ये सवाल जवाब का कल मुद्दा है। आगे चल के मंगलवार फिर सुनानी होगा तो देखना पड़ेगा कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं। लेकिन कल जो बात कही वो बड़ी बात कही कि एक सीएम जो जांच संस्था की भी मुद्दा थी कि एक सीएम इस तरह से जाएंगी, तो ये एग्जाम्पल के तौर से सही नहीं है। इसको कहीं ना कहीं जाके इसका रेक्टिफिकेशन जरूरी है, ऐसा ऑब्जर्वेशन से उभर कर आया। सौरभ, तो क्या इस फटकार का कोई असर पश्चिम बंगाल सरकार पर होता हुआ नजर आएगा? और दूसरी बात ये कि ये जो पूरा मामला है ये 2020 का है, तो इसे आने वाले चुनावों से जोड़ना कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाता है। आंचल, देखिए, अगर आप बोलेंगे, आप जो पूछ रही है कि इसका कोई असर दिख रहा है कि नहीं, अगर आप टीएमसी की रवैया को पकड़ेंगे तो इसका असर छोड़ दीजिए, वो तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोई और संवैधानिक प्रतिष्ठान हो, वो सबको, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उनको लगातार उनके ऊपर हमलावर है। और आप अगर इस मामले से पहले एक दिन पहले चले जाएं तो मंगलवार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब तृणमूल ने अपनी लिस्ट जारी की, जो कैंडिडेट लिस्ट है वो जब जारी की, वो जो सूची जारी की, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने जो बात कहा वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं जाके टीएमसी को फिर एक बार सवालों की कटघरे में खड़ा किया है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीईसी को अटैक नहीं किया, उन्होंने पर्सनल अटैक किया
और उनके आगे जाके तो इतना इस हद तक कह दिए कि आगे जाके अगर स्टेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है तो बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ ये तक कह दिया कि अगर किसी का गला पकड़ना है तो चुनाव आयोग का गला पकड़िए, बीजेपी का गला पकड़िए। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ये कितनी बड़ी भड़कालू बयान है। और उससे पहले पकड़ लीजिए कि एक समुदाय को लेकर 1 सेकंड में सबको समाप्त कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जाके अब तक तो टीएमसी कह रही है कि उनको कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन अब आगे चलकर देखना पड़ेगा अगर कोर्ट का जो राय है वो सीधे उस पर अमल करती है टीएमसी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला न्यूज पंच का जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं बिहार से जुड़ी हुई। तो बिहार में नौकरियों की बहार है, क्योंकि बिहार सरकार 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने के अपने वायदे पर मिशन मोड में जुट गई है। बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है। इसको सार्थक दिशा देने पर बिहार देश का सबसे तेजी से विकास देने वाला राज्य कैसे बन सकता है, उसके लिए बिहार के बड़ी संख्या में उपलब्ध जो युवा मानव संसाधन है उन्हें ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत के लिए टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में विकसित करने में राज्य सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना करने की भी प्लानिंग ब्लू पाइपलाइन के जरिए की जा रही है। तो 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां एक्शन मोड में बिहार सरकार यहां पर नजर आ रही है। इसी के लिए जो सभी विभाग हैं उन्हें नया आदेश दिया गया। ये नया आदेश ये कहता है कि हर महीने उन्हें रिपोर्ट देनी होगी। तो किस तरह एक्शन मोड में, मिशन मोड में बिहार सरकार काम कर रही है, आइए आपको बता दें। तो 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य बिहार सरकार का है और अब इस लक्ष्य पर सरकार की सख्त निगरानी भी है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निगरानी तंत्र जो है उसे अब और मजबूत किया गया। सभी जो विभाग हैं जो कि ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट और ज़्यादा रोजगार के मौके दे सकते हैं, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी गई है। अब ये नज़र कैसे रखी गई आपको बताते हैं, क्योंकि तमाम जो विभाग हैं उनसे अब रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट मांगी गई कि जो नोडल अधिकारी, जो पदाधिकारी हैं, उनको पत्र लिखा गया है। युवा रोजगार कौशल विकास विभाग का ये पत्र है और तमाम जो सृजित नौकरियां हैं उनका ब्यौरा मांगा गया कि कहां कहां पर जो सिचुएशन वैकेंट है उसको लेकर ब्यौरा मांगा गया। रोजगार सृजन पर हर महीने अब आपको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें तमाम जो नियमित पद हैं, संविदा या फिर आउटसोर्सिंग पद हैं, उनका एक पूरा लेखा जोखा आपको पेश करना होगा। विभागों से मिली सूचनाएं अब पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी और रोजगार सृजन पर हर महीने रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें अब जो SC, ST और EWS सामान्य वर्ग का अलग अलग, यानी कि ये अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके जरिए आपको वो ब्यौरा देना होगा कि भाई यहाँ नौकरियाँ और इन लोगों के लिए ये नौकरियाँ कहीं ना कहीं आगे फ़ायदा दे सकती हैं। तो विभागों से जो सूचनाएं मिलेंगी उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, यानी इससे आगे की राह कैसे अब आसान होगी। तो सख्त निगरानी की वजह से आप देखेंगे कि जो रोजगार के मोर्चे हैं उस पर रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अब एक अकाउंटेबिलिटी को तय किया जाएगा, यानी कि जो वादा किया गया उसकी अकाउंटेबिलिटी को तय किया जाएगा। साथ ही नौकरी तलाश कर रहे युवाओं को अब पोर्टल पर ये जानकारी उपलब्ध होगी। और इस पूरी मिशन से बिहार सरकार के 2 बड़े उद्देश्य
यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आते हैं। पहला, रोजगार सृजन की हर गतिविधि की सटीक जानकारी, सही जानकारी उपलब्ध करवाना, और दूसरा कि कैसे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ साथ वो तमाम आंकड़े पोर्टल पर यानी कि पब्लिक डोमेन में अब वो अवेलेबल रहेंगे। तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो उससे छेड़खानी भी नहीं हो सकती, और इस तरह से बिहार सरकार जो जिस तरह का लक्ष्य लेकर चल रही है उसकी प्राप्ति भी आसानी से कर पाएगी। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ अलग मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।